हेलो स्टूडेंट, आज हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे. नाउ लेट बी द सोर्स. S is the here the source which are providing the light. This is the single slit, and after this we can see here double slit. In this double slit provide emit two waves which are superimposed and giving a pattern of dark and bright fringes. This pattern is produced due to the interference of the two waves, and interference of the two waves is superposition of the two waves. Now source providing light and two slits S1 and S2 which are very short and at very short distance. Now we can say the center point is O and the P is a point above the center. Here two waves are superimposed to each other and they meet at P. In this wave S1 and S2 each point P with the same phase difference and hence path difference. Okay. Now the path difference S2P minus S1P and S2P square minus S1P square is equal to D square plus Y plus dy2 square minus D square plus Y minus dy2 का whole square. You can see here also the value S2P square, S2 this and this P is this square and S1P this square. The total square, now calculating the distance is this, is here giving S2P minus S1P is the path difference. S2P plus S1P is equal to 2YD, and which is giving delta 2D is equal to YD. And delta path difference is equal to YD upon D. Y is the distance of point P on the screen from the center, and D is the distance between the two slits, and capital D is the distance between slit to screen. Next, the experimentally the values are giving us the positions of bright fringes. When we got the bright fringes, for a bright fringe at P, we can consider the path difference YD by D, YD upon D, and is equal to N into lambda. N is here number, lambda is the wavelength of the light. So the bright fringe position Y is equal to N D lambda upon D, where N is equal to 0, then Y equal to 0, N is equal to 1, then Y1 is equal to D lambda upon D. Then second position will get N is equal to Y2 is equal to 2D lambda upon D. This is the pattern where we get the fringes bright. And now can see here position of dark fringes. When we take the dark fringe position P, there is the path difference YD upon D is equal to 2N plus 1 multiplied by lambda by 2. This is the pattern for making dark. So the N is here also 0, 1, 2, 3. Now Y is equal to 2N plus 1 D lambda by 2D. Now the position is N1 is equal to Y1. The distance will be 3D lambda by 2D, and second position of the dark fringe will be Y2 is equal to 5D lambda by 2D. Now we can say the both of positions of bright and dark fringes which are get on the screen after interference of the two waves. Expression for the dark fringe width, if you want the calculate dark fringe width, then we got beta is equal to yn minus yn minus 1. NV टर्म्स यानी कि NV पोजीशन को और n माइनस 1V पोजीशन को हम माइनस करेंगे. यहाँ माइनस करते हैं तो हमें मिलता है D लैम्डा अपॉन D. दिस इज़ द डार्क फ्रिंज विड्थ. सेम एज अगर हम यहाँ पर एक्सप्रेशन करते हैं ब्राइट फ्रिंज के लिए, तो व्हेन ब्राइट फ्रिंज बीटा इज इक्वल्स टू yn डैश माइनस yn माइनस 1 डैश, that is also we get D lambda upon D.
फ्रिंज बिट जो होंगी दोनों की सेम साइज़ की होंगी, ठीक है। और इंटेंसिटी वाइज पॉजिटिव ब्राइट फ्रिंज जो है हमारी मिलेगी एन डी लेमडा अपॉन डी फंक्शन से, और डार्क फ्रिंज मिलेगी हमारी 2n+1 डी लेमडा बाई 2d फंक्शन से। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंटेंसिटी। इफ़ वी talk about this graph, when we can see here the intensity is maximum, minimum, maximum, minimum, maximum, minimum is a regular pattern. It's giving a regular pattern. Here is bright, and this will give the dark, and again this will bright, and again this will give dark. So the interference pattern is in a manner. And we can also talk about the intensity max always a plus a square, then it will be maximum intensity is proportional to 4a square. All the bright fringes have this same intensity, but the minimum I minimum is equals to a minus a, that will be 0, and all the dark fringes have the 0 intensity. Okay, now the construction for sustained interference. अगर हम कंडीशन की बात करते हैं, कंडीशंस फॉर द सस्टेन इंटरफेरेंस के लिए क्या क्या कंडीशंस हमें सस्टेन करनी पड़ेंगी व्हेन वी गॉट इंटरफेरेंस। सबसे पहले द टू सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस मस्ट बी कोहेरेंट। टू स्लाइड सोर्सेज जो होने चाहिए कोहेरेंट होने चाहिए। नंबर टू इंटरफेरेंस वेव्स ट्रेन्स मस्ट हैव द सेम प्लेन ऑफ द पोलराइजेशन। दोनों के ट्रेंस जो होने चाहिए वेव के वो सेम प्लेन में पोलराइज होने चाहिए। नंबर थ्री है जो कि इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए हमारी कंडीशन है, टू सोर्सेस मस्ट बी वेरी क्लोज। दोनों सोर्सेस जो हैं स्लिट सोर्सेस वेरी क्लोज होने चाहिए। एंड अदर हैंड द पैटर्न मस्ट बी ऑब्जर्व एट ए लार्जर डिस्टेंस टू हैव द sufficient width of fringe. Fourth is the source must be monochromatic, and otherwise the fringes of the different colors will overlap. हमारा जो भी सोर्स है वो क्या होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक, नहीं तो फ्रिंजेस क्या होंगी, ओवरलैप हो जाएंगी। द फिफ्थ वन कंडीशन इज टू वेव्स मस्ट बी हैविंग सेम एम्पलीट्यूड एंड फॉर अ बेटर कंट्रास्ट। इनका एम्पलीट्यूड जो है सेम होना चाहिए फॉर अ बेटर कंट्रास्ट। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज़ द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? यू कैन सी इन दिस सेक्शन, हियर इज अ सोर्स एंड दिस पैटर्न giving you a maximum intensity is here center point x to y, and other than the intensity will decreases to the ends x or to the ends of y. Now the obstacle if we'll take here, the light is turned, light is bent, and bending of light at the corners and bending of light at the sharp corner is called the diffraction. And the diffraction of, अब अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं diffraction at a slit, diffraction किसी स्लिट से हमारा ये हो रहा है, ठीक है। दिस विल गिव द y सेक्शन और x सेक्शन। एंड डिफ्रैक्शन एट एन ऑब्स्टेकल, अगर हम डिफ्रैक्शन ऑब्स्टेकल से देखेंगे तो दिस इज द ऑब्स्टेकल एंड यू गेट ऑल्सो x एंड y हियर। द टू टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन यू कैन, द XY इज़ द रीज़न ऑफ डिफ्रैक्शन। दोनों डायग्राम आप यहाँ पर शो किए गए हैं। अगर आप कॉर्नर पर ऑब्स्टेकल लेंगे तब भी आपका x और y डिफ्रैक्शन आपको देखने को मिल रहा है, बेंडिंग ऑफ लाइट आपको देखने को मिल रहा है। और अगर सेंटर में ऑब्स्टेकल लेते हैं तभी भी आपको बेंडिंग ऑफ लाइट देखने को मिल रहा है। दोनों जो है यहाँ पर डिफ्रैक्शन के आपके एग्जांपल्स हैं। नाउ अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्लिट ले रहे हैं। नाउ यूजिंग अ स्लिट, दिस इज शोइंग हियर वेरी लार्ज विच इज़ वेरी स्मॉल इन नेचर। अगर हम वैसे देखेंगे तो ये बहुत छोटा होता है स्लिट, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बड़ा करके दिखाया गया ताकि आपको समझा सकें। ये देखिए, नंबर ऑफ लाइंस क्या करेंगे, इस स्लिट से इस प्लेन वेव, जो कि एक प्लेन वेव फ्रंट आपको दिख रहा है, ये प्लेन वेव फ्रंट इस स्लिट पे आ रहा है और यहाँ से डिफ्रैक्शन होते हुए सेंटर O,
ये आपका क्या है ब्राइट, क्योंकि सारी वेव्स जो हैं ये और ये सारी वेव्स जो हैं इस ओ पर सेंट्राइज होंगी और उसके बाद धीरे 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 ऊपर डिक्रीज़ होती जाएंगी, धीरे 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 नीचे चलेंगे तो वो भी डिक्रीज़ होती जाएंगी। तो इस तरीके से ये वन स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो दिखाया गया बेंडिंग ऑफ लाइट, ये देखिए बैंड हो रहा है लाइट, ये भी बैंड हो रहा है और ये सीधे जा रहा है, लेकिन सबके सब कहाँ जा रहे हैं, सेंटर पे। अब अगर हम बात ऊपर की तरफ करेंगे तो या नीचे की तरफ करेंगे तो ये सेंटर वाली ब्राइट इंटेंसिटी क्या होगी, धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। इसी को हम डिफ्रैक्शन का पैटर्न कहते हैं। ठीक है, नाउ टेकिंग हियर द डिफ्रैक्शन एट एंगल, अगर हम मान लें डिफ्रैक्शन को क्या करना है किसी एंगल पे, थीटा हमने क्या कर दिया, θ1 थोड़ा सा इसको हमने बैंड कर दिया, पोजीशन को स्लिट को हमने थोड़ा सा बैंड कर दिया। जैसे ही हम स्लिट को थोड़ा बैंड करेंगे तो क्या होगा, देखिए आपका डार्क पैटर्न आ रहा है P1 पे, लेकिन सेंटर जो है सेंटर अभी भी हमारा सेम ब्राइट बना हुआ है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम और थोड़ा बैंड करते हैं तो हमारा डार्क पैटर्न जो है ऊपर चला जा रहा है, जबकि सेंटर अभी भी ब्राइट बना हुआ है। इसका मतलब मीनिंग ये है कि आप जो कर स्लिट को बैंड करते हैं तो स्लिट की बैंड करने से ब्राइट की जो इंटेंसिटी उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो पैटर्न डार्क है वो काफ़ी दूर तक जो इंटेंसिटी को डिक्रीज़ करता चला जाएगा। नेक्स्ट अगर हम एट एन एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो ये जो पैटर्न है ब्राइट फ्रिंज का, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, इस पैटर्न पे कोई भी जो है फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो नंबर ऑफ़ पॉइंट्स है जो कि हमारी वेवलेंथ जो डिवाइड कर रही है, मतलब सॉरी वेव हमारी जो डिवाइड कर रही है नंबर्स को, ये आप नंबर देख पा रहे होंगे यहाँ, तो ये नंबर्स का एक पेयर बन जाएगा 0, 8, 1, 9, 2, 10, 3 and 11। इंटरफ्रेंस क्या होगा यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा और पाथ डिफरेंस वहाँ पर जो है लैम्डा हो जाएगा। देन अगेन 0, 4, 1, 8, 2, 6 और 8, 12, ये इंटरफ्रेंस जो है डिस्ट्रक्टिव पैटर्न में आ जाएगा और यहाँ पर जो है ब्राइटनेस कम होती चली जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए डिफरेंट ऑफ द वेरियस एंगल्स। अगर अलग अलग एंगल से हम डिफ्लेक्शन करके देखते हैं तो आपको मिल रहा है O, P1, P1' एंड P2, ये आपको ज़ीरो एंगल पे मिल रहा है बेटर और मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ। फिर आपको ये मिल रहा है θ1 पे, ये बन रहा है θ1'2 और ये बन रहा है θ2 पर। इस तरीके से जो प्लेन वेव फ्रंट है और अलग अलग स्लिट और अलग अलग वेव लेंथ पर ये है जो आपको क्या बना रहा है, सेंट्रल मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंज एंड डिफ्रैक्शन नॉट विजिबल आफ्टर द फ्यू ऑर्डर ऑफ द डिफ्रैक्शन। ये अलग अलग ऑर्डर में डिफ्रैक्शन जो है आपको शो हो रहा है, लेकिन ये जो आपको ग्राफ है, जैसे कि इंटरफेरेंस का ग्राफ क्या था, सुपर मैक्स, सुपर मिनिमम, सुपर मैक्स, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, जो डिफ्रैक्शन का पैटर्न का ग्राफ है वो मैक्सिमम कहाँ आ रहा था, सेंटर पे। उसके बाद जो भी हमने एंगल लिए उन सभी पर क्या हो रही है, इंटेंसिटी डिक्रीज होती चली जा रही है। ठीक है, इससे पता चल रहा है कि जो आपका पैटर्न है डिफ्रैक्शन पैटर्न, हमारा जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है हमारा, वो जो है हमारा सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल चल रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ऑब्ज़र्व करते हैं तो पाथ डिफरेंस बिटवीन 0th वेवलेट एंड 12th वेवलेट इज़ Bn। नेक्स्ट यहाँ आप देख पा रहे हैं ये जो सिंगुलर वेव पैटर्न आपको शो किया गया है, इसके लिए हम बात कर रहे हैं। Bn इज़ if the theta is angle of diffraction, d is the slit width and Bn is equal to d sin theta। जो आपकी डिस्टेंस होगी Bn जो है d sin theta हो जाएगी। To establish the condition of the secondary minima and slit divided into 2, 4, 6 equal parts corresponding wavelets and successive region of the interfere with the difference of लैम्डा बाई 2। नाउ nth सेकेंडरी मिनिमा, अगर हम सेकेंडरी मिनिमा की बात करते हैं तो स्लिट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 n इक्वल पार्ट्स, θ1 d sin θ1 इक्वल टू लैम्डा, θ2 d sin θ2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा। सेम एज इसी पैटर्न में आपको जो है 1, 2, 3 करके इसको हम गेन कर सकते हैं। θn इज इक्वल टू हो जाएगा n लैम्डा बाई d। नाउ एस्टैब्लिश टू द कंडीशन फॉर द सेकेंडरी मैक्सिमा। देखो सेकेंडरी मैक्सिमा बनाने के लिए हमने मिनिमा तो बना लिया, अब हम मैक्सिमा अगर सेकेंडरी बनाएंगे तो वो बनेगा 3, 5, 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और θ1 पे वेरिएशन होगा sin θ1 इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2, θ2 पे वेरिएशन होगा d sin θ इज इक्वल टू 5 लैम्डा बाई 2
and this pattern will make the 2n+1 lambda upon 2d। ठीक है, तो ये हो गया इसका थ्योरेटिकली एक्सप्लेनेशन, कैसे हमारा सेकेंडरी मिनिमा और कैसे हमारा सेकेंडरी मैक्सिमा ड्रॉ होगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपनी अटेंडेंस ज़रूर दें।